الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمامی حضرات بڑی محبت نال درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل پیر طریقت راہبر شریعت جناب پیر سید غلام عبد الرسول صاحب دائم الحضوری قصوری دامت برکاتہم العالیہ، معزز علماء کرام، نعت خوان شیریں لسان، اج دی پیاری محفل برائے ایصال ثواب صوفی لیاقت علی پٹواری مرحوم انعقاد پذیر ہے۔ میں تہاڈی خدمت دے اندر محترم مستنصر حسین صاحب دی دعوت حاضر ہویاں۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی سب دی حاضری نو قبول فرمائے۔ مناسب وقت دے اندر چند گزارشات کرنیاں نے، جیڑا انہاں میرے ذمہ عنوان لایا ہے اس دے حوالے دے نال کچھ گزارشاں کرنیاں نے۔ اللہ حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو قبل تو ثنا خانی بھی سماعت فرمائی، کافی وقت ہو گیا، میں 7 بجے دا حاضر ہو گیا، لیکن محفل کچھ لیٹ شروع ہوئی، کوئی بجلی دا مسئلہ بن گیا۔ تو اللہ فرمایا تحقیق آ گیا تواڈے ول اللہ والوں نور اور روشن کتاب۔ نور تو مراد نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات ہے، کتاب مبین تو مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ کریم نے ہر شے تو پہلا نور مصطفیٰ نو پیدا فرمایا، پھر اسے نور نو مقدس بشریت دا جامہ پہنا کے سب نبیاں دے آخر وچ مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جدوں مرضی ہوئی اس نور نو اگے چلائیے، اے نور آدم علیہ السلام دی پیشانی چ رکھیا، پھر اے نور سفر کردہ آیا، کدی شیس علیہ السلام دی پیشانی چ آیا، کدی نوح علیہ السلام دی پیشانی چ آیا، کدی ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی چ آیا۔ اے نور چلدا چلدا کدی اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی چ آیا، کدی یہ نور حضرت ہاشم دی پیشانی چ آیا، چلدا چلدا اے نور جناب عبد المطلب دی پیشانی چ آیا، اور پھر اے نور حضرت سیدنا عبداللہ دی پیشانی چ آ گیا۔ اے نور سفر کردہ آیا، لیکن ایک گل ہے، اے نور جدوں سفر کردہ آیا جتھوں جتھوں دی گزر کے آیا اپنی برکتاں کھلارتا آیا۔ نبی پاک علیہ السلام دے چاچا جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका मैं एक तुहाडी नात लिखी है, इजाजत होवे ते सुनावा। फरमाया सुनाओ। अल्लाह तेरे मुंह नूं सलामत रखे। अरबी जुबान च नात सी जिहदा खुलासा यह सी, सोहणिया नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती किनारे लगी इस वास्ते कि उन्हां दी पेशानी विच तुहाडा नूर सी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं अग ने नहीं साड़िया इस वास्ते कि उन्हां दी पेशानी विच तुहाडा नूर सी। इस्माईल अलैहिस्सलाम दी गर्दन ते छुरी नहीं चल सकी इस वास्ते कि उन्हां दी पेशानी विच तुहाडा नूर सी। ए नूर बरकतां खिलारदा आया। चलदा चलदा जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दा असल नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं, असल नाम शैबा सी। शैबा अरबी जुबान विच ओनू कहंदे ने जिहदी पेशानी दे कुछ बाल सफेद होण। आप दे पैदाइशी तौर ते कुछ बाल सफेद सन, इस वास्ते शैबा आख्या जांदा सी। मुत्तलिब आप दे चाचे दा नाम है, चूंकि चाचे ने आप नूं पालिया ते पुत्र किसी दा होवे, पालन वाला कोई होवे ते वो अपने आप नूं ओदा अबद कींदा सी। अरब दे अंदर ये भी रिवाज सी, तो इस वास्ते भी अब्दुल मुत्तलिब आख्या गया। दूसरी वजह यह कि शैबा बच्चियां च खेल रहा सी, अपने नानके रहिंदा सी ते मुत्तलिब दे दोस्तां विचों एक बंदा उस पासे गया। उन्हें वेख्या कि बच्चे तीर दे निशाने मार रहे ने। ये शैबा जदों तीर दा निशाना मारदा ते कहंदा अन्ना इब्नो हाशिम, ते बड़ी जुरत नाल निशाना मारदा है। जदों जुरत नाल निशाना मारदा है ना ते कहंदा अन्ना इब्नो हाशिम। तो उस बंदे ने पूछा बेटा तेरा नाम की? उन्हें कहा मेरा नाम शैबा। और तू हाशिम दा पुत्र जिहड़ा फौत हो गया? उन्हें कहा हाँ। मुत्तलिब दा भतीजा? उन्हें कहा बिल्कुल। वापस आन के उन्हें मुत्तलिब नूं आख्या, कहन लगा तेरे तो बाद भी तो किसी कौम का सरदार बनना है ना? उन्हें कहा हाँ। तो उन्हें कहा फिर वो वास्ते कोई बंदा चुनिया ही? कहना नहीं। उन्हें कहा जो शैबा है ना हाशिम का पुत्र, वो सारिया क्वालिटियां मौजूद ने जिहड़ियां एक कौम के सरदार विच होनियां चाहिए ने। ते जा उन्होंने लैके आ, उत्थे यतीमा वाला हाले फटे पुराने कपड़े इत्थे ओदी परवरिश कर लिया के ताकि तेरे तो बाद कौम का सरदार वो बन जाए। मुत्तलिब गए शैबा नूं फरमाया पुत्र मैं तेनों लैन आया। सवारी ते बिठाया, लैन दा। फरमाया पुत्र जे रस्ते च किसे पूछया तू कौन है तो तू आखी अना अब्दुल मुत्तलिब। है तू मेरा भतीजा पर आखी अना अब्दुल मुत्तलिब। और जिन्हें किसी ने पूछना की सी, पहुंच गए। शैबा ने अपना शैबा नाम खत्म कर दिता, अब्दुल मुत्तलिब नाम पक्का कर लिया। अच्छा ये अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे दे मुतवली, खाने काबे दे पहले मुतवली नहीं सी। पहले खाने काबे दे मुतवली जो जुरहम कबीले वाले सन, उन्हां दी बदअमालियां दी वजह दे नाल जमजम दा खूह बंद हो गया सी, खुश्क हो गया सी। उन्हां दे सरदार ने बड़ा समझाया कि मन जाओ, बदअमालियां छड़ दिओ। उन्हां ने छड़ियां। ओदे कोल जिहड़े फंड सी खाने काबे दा, 2 सोने दे हरन ते कोई जिरा ते तलवारां उन्हें जमजम दे खुश्क खूह दे विच सुटियां। सुट के बंद करके मिट्टी पा के वो निकल गया। उन्हें कहा इन्हां दे अमलां दी वजह नाल अजाब होना ते मेरा भी नुकसान होएगा। वो छड़ के चला गया। मेरे दोस्त वक्त गुजरता गया, जमजम दा खूह बंद रहा। 1 साल बंद नहीं रहा, 2 साल बंद नहीं रहा, 3 साल बंद नहीं रहा, 100 साल बंद नहीं रहा, 200 साल बंद नहीं रहा, बल्कि जमजम दा खूह पूरा 500 साल बंद रहा। 500 साल तो बाद एक दिन अब्दुल मुत्तलिब जदों सुते होए ने ते ख्वाब के अंदर हुक्म होया अब्दुल मुत्तलिब बर्रा खोदो। अच्छा बर्रा दा माना नेक लोकां वास्ते। साहिबे जुबान सन, अहले जुबान सन, माना समझ गए, मुराद ना समझ सके। दूजी राती फिर हुक्म होया अब्दुल मुत्तलिब तैबा खोदो। तैबा दा माना है पाक चीज। मुराद समझ गए, माना समझ गए, मुराद ना समझ सके। तीजी राती फिर हुक्म होया अब्दुल मुत्तलिब मजनूना खोदो। मजनूना दा माना खास चीज, समझ ना सके मैनू काहदा हुक्म हो रहा है। चौथी रात आई, चौथी रात हुक्म होया अब्दुल मुत्तलिब जमजम दा खूह कड्डो।
जनाब अब्दुल मुतलब समझ गए ए जेड़े तीन नाम ने ये भी जमजम दे खूह दे नाम ने, ये मैनू जमजम दा खूह कड्डण दा हुक्म हो गया है। असल इशारा इस पासे सी अब्दुल मुतलब जमजम दा खूह कड्डो, इहदा मतलब की ये हुण काबे दे मुतवल्ली तुसी बन जाओ। दिन चढ़िया कौम वाले नू फरमाया बई मैनू अल्लाह ने जमजम दा खूह कड्डण दा हुक्म दिता है, तुसी मेरा साथ दिओ। उन्हें आख्या अब्दुल मुतलब तेनू पता जमजम दा खूह है कित्थे? उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा जो तेनू ये नहीं पता जमजम का खूह तो कड्डेगा किवें? फरमाया जिन्हें आर्डर किया वो आप ही दसेगा ना है कित्थे। अगली राती फिर सुते ख्वाब के अंदर हुक्म होया अब्दुल मुतलब जमजम का खूह कड्डो। ख्वाब विच पुछया आर्डर करने वाले ये भी तो दस दे आई ना हैया वो है कित्थे? जवाब मिलिया बैनल फरसे व दमे इंदा करिया ते नमले, कीड़ियां दी बस्ती दे कोल गोबर ते खून दे वे सफेद सीने वाला काला कव्वा चुंजा पिया मारदा ही, उतों जाके जमीन फुलना शुरू करते ही जमजम दा खूह निकल आएगा। दिन चढ़िया जनाब अब्दुल मुतलब कीड़ियां दी बस्ती दे कोल चले गए। उत्थे जाके देखिया कि कीड़ियां दी बस्ती मौजूद है, गोबर ते खून मौजूद कोई नहीं। एक बंदा गां ज़िबा कर लगा, वो ज़िबा ना हो सकी, वो उत्थे लिया के वो दौड़ती आई, उत्थे आन के डिग पई, उन्हें उत्थे ही ज़िबा कर ली, वो बाकी समान चुक के लै गया तो गोबर ते खून छट गया। फरमाया दो निशानियां पूरियां हो गई ने, कीड़ियां दी बस्ती भी गोबर ते खून भी, सफ़ेद सीने वाला कव्वा कोई नहीं। थोड़ी देर तो बाद एक कव्वा आया, काला कव्वा, उन्हें आन के चुंझा मारियां। अब्दुल मुतलब निशानी ला ली। फरमाया इस जगह ते जमजम दा खूह है। कौम वाले ने फरमाया भी मेरा साथ दिओ, मैनू पता लग गया जमजम दा खूह इस जगह ते कढ़ाओ मेरे नाल। उन्हें आख्या अब्दुल मुतलब आर्डर तैनू होया कढ़ दे असी फिरी जा कढ़ आ पई। उदों आप दा इक्को पुत्र सी हारिस। हारिस नूं नाल लिया जनाब अब्दुल मुतलब खूह कढ़न वास्ते चले गए। जमीन पुटदे ने, बड़ी औखी जमीन पुट्टी जाती है, पथरीली जमीन है। नाल ही पुटद्या पुटद्या अर्ज की मौला इको पुत्र दिता ही, कदी दस देवें ते एक पुत्र तेरे नां ते कुर्बान कर देंगा। ये पढ़द्या पढ़द्या खूह मन्नत मान ली। अच्छा पुटते रहे, जो थले देखा ना कि वाकई खूह के सरात हैं, वो दूजी कौम वाले भी आ गए। उन्हें कि अब्दुल मुतलब तेरा कले का खूह नहीं है, साडा भी हिस्सा है। ये इस्माइल दे विरासत का खूह है, असीं भी मालिक हाँ। फरमाया नहीं मैं कला ही मालिक हाँ। जदों झगड़ा पैन लगा, कह लगे मुल्क शाम के अंदर एक काहिन ने उहदे कोलों फैसला कराइए। फैसला कराने वास्ते दोवें ग्रुप मक्का शरीफों मुल्क शाम चल पे। उस जमाने के अंदर मुल्क शाम के अंदर मक्का शरीफ तो लैके मुल्क शाम तक कोई आबादियाँ नहीं सी, कोई बस्तियाँ नहीं सी। जनाब अब्दुल मुतलब ने भी पानी लै लिया, राशन लै लिया, मुखालफा भी लै लिया। चलद्या चलद्या अल्लाह की कुदरत का एक नज़ारा वेख्या कि अब्दुल मुतलब के साथियों कोलों पानी खत्म हो गया। जदों पानी खत्म होया, जनाब अब्दुल मुतलब ने साथी कह लगे अब्दुल मुतलब साढ़े को पानी खत्म हो गया, मुखालफा को लै लो। और मुखालफा आख्या पानी दे दिओ। उन्हें कहा असा तुहानू पानी नहीं देना, तुहाडे कोलों खत्म होया तो असी दे दईए, साढ़े कोलों खत्म होया फिर कौन देवेगा, असा नहीं देना पानी। जनाब अब्दुल मुतलब ने फरमाया साथियों इन्ना पानी देना कोई नहीं, सानू पानी लभना कोई नहीं, असा प्यासे मर जाना, जेड़े पानी नहीं देंदे सानू दफन कदों करनगे। इस वास्ते अपनी अपनी कब्रां कढ़ लो हुणे ही, हुण ते साडे विच हिम्मत है, अपनी अपनी कब्रां कढ़ लो, कब्रां कढ़ के कब्रां दे विच बैठ जाओ ते अपनी मौत का इंतजार करो। ये सारे इंज करन लग पे, अपनी अपनी कब्रां कढ़ के बैठ गए, मौत का इंतजार करन लग पे। मेरे दोस्त कब्रां कढ़ लियां, मेरे दोस्त ख्याल फिर की होया, हजरत अब्दुल मुतलब नूं मौत आउंदी किवें, हले ते नूर मुस्तफा ने अगे सफर करना सी। मौत ना आई, एक सोच आ गई कि अब्दुल मुतलब ये तो कोई अकलमंदी नहीं, ये तो कोई समझदारी नहीं, कोई दलेरी नहीं, तो बुज़दिली है कि आप ही अपनी मौत का इंतजार करना, आप ही कब्र कढ़ लेना। ये सोच के आप जल्दी जल्दी कब्र चो निकले। फरमाया साथियों निकल आओ। इदा आप ही कब्र कढ़ के असीं बह गए हैं तो मौत का इंतजार कर रहे हैं, ये तो कोई बहादरी तो दलेरी नहीं, बल्कि असीं हुण पानी तलाश करांगे आखिरी दम तक। पानी तलाश करदे मौत आउंदी है तो आ जावे, वो तो मंजूर है, आ मंजूर नहीं। जदों उठे तो जदों तुरन लगे, जिथे जमजम जिथे अब्दुल मुतलब का ऊंट बैठा सी उतों पानी का चश्मा जारी हो गया, उस जगह तो पानी का चश्मा जारी हो गया। हजरत जनाब अब्दुल मुतलब ने जदों वेख्या, लोगों ने भी वेख लिया, खुद भी पानी पीता, अपने साथियों भी पिया, मुखालफा नूं फरमाया तुसीं भी पी लो। मुखालफा भी पानी पीता, जनाब अब्दुल मुतलब वापस आ गए।
जदों पानी पीता, पानी पी के कहन लगे बर्तन भी भर लो, चलो भी चलीए। मुखालिफ कहन लगे कित्थे जाना है? फरमाया मुल्के शाम जाना है। कहन लगे उत्थे की लैन जाना है? फरमाया जमजम दे खूह दा फैसला कराउणा है। मुखालिफ कहन लगे अब्दुल मुत्तलिब ला नुखासिमुका फी जमजम अबदा, असी जमजम दे मामले दे अंदर तेरे नाल झगड़ा नहीं करांगे, सानू यकीन आ गया है जिस अल्लाह ने तेरी खातर इस जगह ते पानी दा चश्मा जारी कर दिता है, उस अल्लाह ने जमजम दे खूह दा मालिक भी तैनू कल्ले नू बनाया है। लो जी वापस आ गए। जदों वापस आ गए ना फिर कढ़ना शुरू कर दिता। और जो खूह कढ़िया विचों ज़िरा ते सोने के 2 हिरन निकले। उन्हें कहा की करना है? फरमाया ये ज़िरा ते सोने के हिरन जेड़े ये भी मेरे ने। उन्हें कहा नहीं ये साडे नाल हिस्सा पा। फरमाया नहीं फिर कुरानंदाजी करो। कुरानंदाजी की ज़िरा ते सोने के हिरन निकल आए खाने काबे के नाम, तो ज़िरा ते तलवारां निकल आईयां जनाब अब्दुल मुत्तलिब के नाम। मुखालफां दे नाम कुछ नहीं निकलिया। आपने उस समान का दरवाज़ा बनाया, उहदे उत्ते सोने के हिरन पिघला के सोना चढ़ा के ते खाने काबे नूं ला दिता। हुण जमजम का खूह जारी हो गया। मेरे दोस्त जदों जमजम का खूह जारी होया, मेरे नबी की आमद का जमाना करीब आया, बरकतां शुरू हो गई। 500 साल बाद जमजम का खूह जारी हो गया। हुण वक्त गुजरता गया, 1 साल गुजरिया, 2 साल गुजरे, 10 साल गुजरे, जदों 30 साल हो गए जमजम के खूह नूं जारी होया। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब सुते ने, ख्वाब के अंदर हुक्म होया अब्दुल मुत्तलिब प्यारे अब्दुल मुत्तलिब कुर्बानी करो। दिन चढ़े अब्दुल मुत्तलिब ने दुम्बा ज़िबा कर दिता। हुक्म होया अब्दुल मुत्तलिब नहीं नहीं इस तो महंगी चीज कुर्बानी करो। अगली राती गाय ज़िबा कर दी। तीजी राती फिर हुक्म है अब्दुल मुत्तलिब इस तो भी महंगी चीज कुर्बान करो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ऊंट ज़िबा कर दिता। चौथी राती हुक्म है अब्दुल मुत्तलिब असा तेरे को दुम्बे की कुर्बानी नहीं मंगी, गां की कुर्बानी नहीं मंगी, असा तेरे को दुम्बे की कुर्बानी नहीं मंगी, गाय की कुर्बानी नहीं मंगी, तेरे को असा जानवर होर नहीं मंगया, ऊंट नहीं मंगया, तेरे को ओ कुर्बानी मंगी है। और जदों अज तो 30 साल पहले जमजम का खूह कढ़ दिया तू मन्नत मन्नी सी पाक परवरदिगार कदी पुत्र देवें या 10 पुत्र देवें तो एक तेरे नां ते कुर्बान कर दियांगा। फरमाया वेख 10 हो गए कि नहीं, हुण कुर्बान कर। जनाब अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए कि किनू कुर्बान करा, कौन तैयार होएगा। जदों सोची पै गए ना तो ख्वाब के अंदर ही सोची पै गए तो 10 पुत्र इकट्ठे होके आ गए। कहन लगे अब्बा जी तुहाडा मामला की, सानू दसो तुसीं परेशान क्यों जे। फरमाया बेटा मामला ये है कि मैनू इस तरह मैं मन्नत मन्नी सी कि 10 पुत्र हों तो एक अल्लाह के नाम ते कुर्बान करांगा, अल्लाह हुण कुर्बानी पिया मंगदा है। वो 10 ही तैयार हो गए अब्बा जी सानू कुर्बान करो। कहने लगा पुत्र कुर्बान एक करना है तो मैं कुरानंदाजी करांगा, जिहदा नाम निकल आवे उन्होंने कुर्बान कर दियांगा। जदों कुरानंदाजी की तो नाम निकल आया मेरे ते तेरे लजपाल नबी दे अब्बा जी का हज़रत सैयदना अब्दुल्ला का नाम निकल आया। पर कुर्बानी हुंदी किवें, हले ते नूरे मुस्तफा ने अगे सफर करना सी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने छुरी चुक ली। जदों ज़िबा करने वास्ते अगे तो लोगों ने कुछ कौम ने कबीले के सरदारा ने आख्या अब्दुल मुत्तलिब ये गल ठीक नहीं, असा तेनू पुत्र ज़िबा करन नहीं देना। फरमाया भी मैं करना है। उन्हें कहा असा तेनू करन नहीं देना। इस वास्ते ये रीत चल पैगी। जदों ज्यादा ही गल वधी कुछ लोगों ने आख्या खैबर के मकाम पर एक औरत रहिंदी है जिहड़ी आसमानी किताबों की आलम है, उन्होंने जाके मसला पुछो, जे वो कोई हल कढ़ दे तो ठीक, नहीं तो तू पुत्र कुर्बान कर ला भी असीं तेनू रोकांगे नहीं। हुण फैसला कराने वास्ते मैं मुल्के खैबर के मकाम ते उस औरत के कोल पहुँच गए। उस औरत ने फैसला की कीता, कहन लगी जे कोई तुहाडा बंदा कतल हो जाए तो दीयत किन्नी देंदे हो। उन्हें कहा जी साडा कोई बंदा कतल हो जाए तो असीं 10 ऊंट देने दीयत। कहन लगी लो मसला हल हो गया। दोबारा जाके कुरानंदाजी करो, एक पासे अब्दुल्ला का नाम लिखो, एक 10 ऊंट लिखो, ऊंटा की तादाद 10 लिखो। जे अब्दुल्ला का जे ऊंटा का नाम निकल आवे ठीक, नहीं तो 10 ऊंट होर वधा दिओ। फिर वेखियो जे ऊंटा का नाम निकल आया ठीक, नहीं तो 10-10 करके वधाते जाओ। जिथे ऊंटा का नाम निकल आवे समझ लेना अल्लाह नू अब्दुल्ला के बदले इन्ने ऊंटा की कुर्बानी मंजूर है।
واپس آئے تے جناب میرے دوست قرآن دا دی شروع ہوئی 10 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلیا جناب عبداللہ دا 20 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلیا جناب عبداللہ دا 30 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلیا جناب عبداللہ دا 40 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلیا جناب عبداللہ دا 50 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلیا جناب عبداللہ دا 60 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلیا جناب عبداللہ دا 70 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلیا جناب عبداللہ دا 80 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلیا جناب عبداللہ دا 90 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکلیا جناب عبداللہ دا 100 اونٹ تے جناب عبداللہ نام نکل آیا 100 اونٹاں دا ہر پاسے آوازیں کسے کہ عبدالمطلب مبارک ہوئے اللہ نو تیرے بچے دے تیرے بیٹے دے بدلے دسا 100 اونٹاں دی قربانی منظور ہے جناب عبدالمطلب نے 100 اونٹ قربان کر دیتا لوکاں گوشت کھادا رج رج کی بندیاں بھی کھادا انسان نہ کھادا جانوراں کھادا وقت گزرتا گیا ہن اگلا وقت آیا حضرت عبداللہ دی شادی ہوئی ہے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ دے نال سیدہ آمنہ دا تعلق ہے بنی زہرہ قبیلے دے نال اور حضرت عبداللہ دا تعلق ہے قبیلہ قریش نال انہاں دوواں دی آپس میں رشتہ داری کیویں ہوئی اے دی ایک بیک گراؤنڈ ہے ایک وری جناب عبدالمطلب یمن وال تجارت واسطے گئے اوتھے ایک راہب ملیا اس راہب نے جناب عبدالمطلب نو کیا کہنے لگا عبدالمطلب کاہن ملیا کہنے لگا میں نو اپنا نتنا چیک کراؤ نتنا چیک کر کے کہنے لگا کہ تواڈے ایک ہاتھ دے وچ نبوت ہے ایک ہاتھ وچ سرداری ہے پر شرط ہے کہ بنی زہرہ قبیلے دے نال